Hello friends, now in this lecture we will see some more examples from chapter number 3 Mathematics 1, its arithmetic progression. See the example. Given arithmetic progression 12, 16, 20, 24 and so on, find the 24th term of this progression. Previous example जो हमने देखा था उसी तरह का एग्जाम्पल है. सिंस गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन. फ्रॉम दिस वी कैन राइट a is equal to t1 is equal to 12, t2 is equal to 16, t3 is equal to 20 and t4 is equal to 24. Now a is equal to 12. If we calculate for common difference, we get 16 minus 12 is 4. So common difference d is equal to 4. We have to find the 24th term. So use the formula. We know Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Put the values only. Tn इसका मतलब है T24 is equal to a 12 plus n 24 minus 1 into common difference 4 is equal to 12 plus 23 into 4. 23 4s are 92, 12 as it is, and 12 plus 92 is nothing but 104. Therefore, the 24th term of an AP is 104. Find the 27th term. सेम एग्जाम्पल 24 के बजाय हमें 27th टर्म यहाँ निकालने हैं. फॉर गिवन एपी 9, 4, -1, -6 एंड सो ऑन. ऑब्वियसली a इज इक्वल टू 9. कॉमन डिफरेंस d 4 minus 9 इट इज -5, -4 -1 -4 और -6 -1 it is -5 only. So a is equal to 9 and d is equal to -5. n is equal to 27. We know Tn is equal to again a plus n minus 1 into d. Putting the values, T27 is equal to a 9 plus n 27 minus 1 into कॉमन डिफरेंस d -5. यहाँ कॉमन डिफरेंस निगेटिव है इसलिए इसे ब्रैकेट में दिया है. कैलकुलेट द इक्वेशन. 9 प्लस 26 इंटू -5. 9 एज इट इज प्लस इंटू माइनस इट इज माइनस 26 5 130 and 9 minus 130 is nothing but minus 121. Therefore 27th term of an AP is equal to minus 121. In this type of example, the formula is very important, which is Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Now, see the next example. Find how many 3-digit natural number are divisible by 5. Word problem is there. See the question carefully. Find how many 3-digit natural numbers are divisible by 5. यहाँ AP दिया नहीं है तो हमें AP निकालना चाहिए. 3-digit natural numbers divisible by 5 are. कौन से 3-digit natural numbers है which are divisible by 5. First number is 100. 3-digit first number is 100. Is it divisible by 5? Yes, it is divisible by 5. So first number is 100. इसके बाद नंबर आएगा 105, 110 and so on. Last 3-digit number is 999, but it is not divisible by 5. So 998, it is also not divisible by 5. 997, 996, 995. 995 is divisible by 5 and it is the last 3-digit number which is divisible by 5. So last number is 995.
Now here we observe the sequence getting is an AP दिया नहीं था, इसलिए हम इस सीक्वेंस को AP कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। 105 माइनस 100, 10 माइनस 5, 95 माइनस 90, in all terms common difference D is constant. Therefore given sequence is an AP. Then what is given data? In the given data, first term is 100, common difference D is 5 and Tn का मतलब है nth term, last term, Tn is equal to 995. Use the formula once again. Tn is equal to A plus n minus 1 into D. इसमें से हमें Tn की वैल्यू पता है, A मालूम है, D मालूम है, n अननोन है, तो we can easily find out the value of n. Put the values only, we get Tn 995 is equal to A 100 plus n अननोन है, इसलिए ब्रैकेट n माइनस 1 एज इट इज रहेगा इंटू D कॉमन डिफरेंस 5. सो कैलकुलेट 995 माइनस 100 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5. 995 माइनस 100 इज 895 इज इक्वल टू 5 इंटू n माइनस 1. n इज इक्वल टू, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. n माइनस 1 इज इक्वल टू 895 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 179. यहाँ माइनस 1 है, अगर वो RHS जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा और हमें मिलेगा n इज इक्वल टू 179 प्लस 1 इज इक्वल टू 180. n की वैल्यू 180 आती है, तो हमें आंसर मिल गया 180. 3 digit natural numbers are divisible by 5. How many numbers divisible by 5 in 3 digit? It is 180. In all exam, the formula is very important. Tn is equal to A plus n minus 1 into D, and the first thing, 3 digit natural numbers divisible by 5 are. ये सीक्वेंस आपको आना चाहिए. अगर वो सीक्वेंस आ गया तो एग्जाम्पल आ सकता है, सीक्वेंस नहीं आया तो एग्जाम्पल नहीं आ सकता. इसे इस तरह 2 डिजिट का एग्जाम्पल भी आपको पूछा जा सकता है. सी 11, 8, 5, 2, so on. In this AP, which term is number -151? थोड़ा अलग टाइप का एग्जाम्पल आपके सामने दिया है. यहां गिवन इट इज AP, वो AP है, दिया है, इसका मतलब A की वैल्यू फिक्स है 11, D की वैल्यू जो है 8 माइनस 11 इज -3 फिक्स है. हमें क्वेश्चन पूछा गया है विच टर्म इज नंबर -151. -151 कौन सी टर्म है? n की वैल्यू यहां हमें निकालनी है, इसलिए मैंने Tn इज इक्वल टू -151 लिखा और द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n. सो सिंपल, वी नो द फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला, वी गेट Tn की वैल्यू है -151 इज इक्वल टू 11 प्लस n अननोन -3 कॉमन डिफरेंस. -151 minus 11 is -162 is equal to -3 into n minus 1. -3 इधर आ गया, -162 डिवाइडेड बाय -3, माइनस माइनस गेट कैंसल, 3 फाइजा 3 फोजा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 54. -1 ट्रांसफर कीजिए RHS, we get n is equal to 54 plus 1 and it is 55. So n is equal to 55. So हम कह सकते हैं नंबर -151 is 55th टर्म. 55th टर्म पे
-151 ये टर्म आ सकती है। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड S27। सी हियर, अब हम Tn से Sn में जा रहे हैं। Sn का मतलब है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP। सो यहां S21 की वैल्यू हमें निकालनी है। सी, गिवन डाटा इज A इज इक्वल टू 6, D इज इक्वल टू 3, S27 हमें निकालना है। यहां हमें मालूम है Sn का फॉर्मूला। Sn का फॉर्मूला है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn का और भी एक फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। a का मतलब फर्स्ट टर्म, l का मतलब लास्ट टर्म। अगर एग्जाम्पल में हमें लास्ट टर्म पता है तो वो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। यहाँ लास्ट टर्म तो पता नहीं, इसलिए यही फॉर्मूला हमें यूज करने वाले हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। Sn S27 इज इक्वल टू n की वैल्यू 27 है तो 27/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू है 6, 6 2 ज़ा 12 प्लस n की वैल्यू है 27। सो 27 - 1 इंटू 3, कॉमन डिफरेंस d 3 दिया हुआ है। 27/2 एज इट इज इंटू 27 इंटू 1, 27 - 1 इट इज 26, 26 3 ज़ा 78 प्लस 12 90। सो हियर इज 90। 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 2, 5 ज़ा। सो 27 इंटू 45 we get S27 is equal to 27 into 45 is nothing but 1215. So S27 is 1215। फर्स्ट 27th टर्म की एडिशन जो है, सम जो है, वो सम हमें यहां मिलती है 1215। This formula is important in this example. See the formula once again. Sn is equal to n/2 in bracket 2a plus n-1 into d। Tn का फॉर्मूला अलग है, Sn का फॉर्मूला अलग है। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। फाइंड द सम, इसका मतलब Sn का फॉर्मूला हमें यूज करना ही है। ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। सो हम यहां शुरुआत करते हैं। फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स आर, कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं? 2, 4, 6 एंड सो ऑन। दीज नंबर्स आर इन AP। AP में क्यों है? क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस D जो है वो कॉमन डिफरेंस D कांस्टेंट है। कॉमन डिफरेंस D जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए हम यहां इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। हियर A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 2, 4 - 2, 6 - 2, 8 - 6 again 2. So common difference D is 2 and n is 123. Yes, so we know. यहां हम ये एग्जाम्पल दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, Sn is equal to n/2 इन ब्रैकेट a प्लस n-1 इंटू d फॉर्मूला यूज करके। सेकेंड में हम यहां फॉर्मूला यूज करने वाले हैं Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, जो पहले मैंने आपको बताया था। तो ए फॉर्मूला हम यहां यूज करने वाले हैं। सी द इक्वेशन। ये फॉर्मूला यूज करने के लिए लास्ट टर्म हमें पता चाहिए। फर्स्ट टर्म तो मालूम है यहां, लेकिन लास्ट टर्म मालूम नहीं है। सो
T123 टर्म जो है वो टर्म हम पहले निकालेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. पुट दी वैल्यूज. T123 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 123, d की वैल्यू है 2. 2 प्लस 120 इंटू 2 प्लस 244. सो हमें T123 की वैल्यू जो है टर्म जो है वो टर्म मिली 246. नाउ वी यूज द फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस यल. a का मतलब है फर्स्ट टर्म, यल का मतलब है लास्ट टर्म. पुट द वैल्यूज. Sn इज इक्वल टू n की कीमत है 123 डिवाइड बाई 2, a की कीमत है 2 एंड यल की वैल्यू है 246. सो 123 बाई 2 इंटू 248. 2 1 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 4 जा. So 123 into 124, we get 15,252, and therefore we can say sum of first 123 even natural numbers is 15,252. This example can be solved by both the formula. पहला फॉर्मूला Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d, and the second formula is Sn is equal to n by 2 in bracket a plus l. For both the formula n की वैल्यू मालूम होना जरूरी है. अगर n की वैल्यू मालूम नहीं है तो दोनों फॉर्मूले से हम आंसर तक नहीं जा सकते. See the next example. In an AP, 19th term is 52 and 38th term is 128. Find sum of first 56 terms. यहाँ गिवन डाटा में हमें T19 की कीमत दी है और T38 की कीमत दी है, और इससे हमें S56 निकालना है. S56 इट इज सम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सी फॉर गिवन एन एपी T19 इज 52 एंड T38 इज इक्वल टू 128. इसके लिए फॉर्मूला हमें पता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. फॉर यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर n इज इक्वल टू 19, T19 के लिए ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. हमें मिलेगा T19 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि a और d दोनों का पता यहां नहीं है. पहला इक्वेशन हमें मिलेगा T19 52 है, a प्लस 19 माइनस 1 18d. सो पहला इक्वेशन हमें मिला a प्लस 18d इज इक्वल टू 52, इक्वेशन नंबर 1 बाय n इज इक्वल टू 19. बाय यूजिंग n is equal to 38, we get this second equation. See, for n is equal to 38, T38 is equal to a plus 38 minus 1 into d. So हमें इक्वेशन मिला a plus 37d is equal to 128. इक्वेशन 1 मिला, इक्वेशन 2 मिला. साइमल्टेनियस इक्वेशन है with the variable a and d. यहां अगर दोनों इक्वेशन ऐड किए जाते हैं, तो हमें मिलता है 180 इज इक्वल टू 2a प्लस 55d, इक्वेशन नंबर 3. नाउ वी सी व्हाट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज फाइंड S56. सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. पुट द वैल्यूज. S56 is equal to 56 by 2 2a plus 56 minus 1 55d. 56 by 2 is nothing but 28 into 2a plus 55d. 2a plus 55d की वैल्यू हमें यहां मिली है 2a plus 55d. So put this value in this equation, we get 28 into 180 is 5040
सो सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स इज इक्वल टू 5040। आप में से कई स्टूडेंट अलग तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इक्वेशन नंबर 1 हमें यहां मिला, इक्वेशन नंबर 2 हमें यहां मिला। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 साइमल्टेनियस इक्वेशन है। वी कैन सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड गेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ ए एंड डी। ए एंड डी की वैल्यू अगर मिलती है तो हम इस फॉर्मूला में ए और डी की वैल्यू पुटअप करके फाइनल आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, वक्त ज्यादा जाएगा। इसलिए पहले ये फॉर्मूला मैंने देखा और यहां 2a प्लस 55d मुझे चाहिए, ये मुझे पता चला। और मुझे ये भी पता चला कि अगर इन दोनों का एडिशन किया जाता है तो 2a प्लस 55d मिल सकता है। तो फॉर द सिंपलेस्ट वे इस एग्जाम्पल में हमने एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 थर्ड इक्वेशन क्रिएट किया और वे इस इक्वेशन से मिली हुई वैल्यू जो है वो वैल्यू फॉर्मूला में पुट कर दी और हमें आंसर जो है वो आंसर जल्दी मिला। कुछ तरीके ऐसे यूज करने पड़ते हैं। सीधा एग्जाम्पल, ऑन 1st January 2016 सानिका डिसाइड्स टू सेव ₹10, ₹11 on 2nd day, ₹12 on 3rd day. If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? वर्ड प्रॉब्लम है, केयरफुली रीड करना चाहिए। क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, ये सब कुछ मालूम होना चाहिए आपको। सी, सानिका सेव्स ₹10 on 1st day, ₹11 on 2nd day, ₹12 on 3rd day, and so on. This is an AP. Hence, her saving are in AP. इसकी सेविंग AP में आती है क्योंकि 10, 11, 12, 13, 14 and so on. कॉमन डिफरेंस हर बार 1 रहता है। सो फर्स्ट टर्म T1 is equal to A is equal to 10. कॉमन डिफरेंस D is equal to 1 मैंने आपको बताया। टू फाइंड अ सेविंग इन ईयर 2016 हमें मालूम होना चाहिए कि 2016 में हाउ मेनी डेज आर देयर। 2016 is a leap year, is very important, and so number of days is equal to 366, not 365. This is most important. इसीलिए हमें यहां तारीख के साथ 2016 दिया है क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं। इतना ही अगर हमें पता है तो एग्जाम्पल रॉन्ग आ जाएगा। यहां नंबर ऑफ डेज है 336। सो n इज इक्वल टू 336 हो गया। A 10, D की वैल्यू है 1, n की वैल्यू है 336 और हमें यस 336 निकालना चाहिए क्योंकि सेविंग जो की है उस सेविंग की हमें सम निकालनी है। इसका मतलब यस 336। लास्ट टर्म तो पता नहीं है, इसलिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे यस एन इज इक्वल टू n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. Most important formula for the values. Yes 36 is equal to 366 by 2 in bracket 2 into 10 20 366 minus 1 365 into 1 कॉमन डिफरेंस। इसलिए 183 into 20 plus 365 183 into 385 मल्टीप्लीकेशन आएगा 70,455 द वैल्यू ऑफ यस 366। सो क्वेश्चन जो पूछा गया था उस हिसाब से हमें आंसर देना है। हर टोटल सेविंग ऑफ ईयर 2016 इज 70,455। ये आंसर होगा। यहां हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट 2016 लीप ईयर है, ये ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल,
Sachin invested in a national saving certificate scheme. In the first year, he invested 5,000, second year 7,000, third year 9,000 and so on. Find the total amount that he invested in 12 years. Same example है, कोई बदलाव नहीं है. ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है या और कोई स्कीम है, कोई मायने नहीं रखता. यहाँ सचिन इन्वेस्टेड 5,000, 7,000, 9,000 in first, 2nd and 3rd year respectively in national saving certificate. These savings are in AP. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. These savings are in AP. ये सेंटेंस आपको आंसर में लिखना चाहिए, क्योंकि ये AP है तो ही हम आगे के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं. फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 5,000 हमें मिल गया. कॉमन डिफरेंस D, 7,000 माइनस 5,000 ले लीजिए और 9,000 माइनस 7,000 ले लीजिए, 2,000 आएगा. सो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2,000. अमाउंट इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स हम डिनोट करेंगे यस 12, क्योंकि सब अमाउंट की एडिशन करनी है. सो यूज द फॉर्मूला Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. See, Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. Put the values. n की वैल्यू है 12, 12 by 2 in bracket 2 into first term 5,000 plus n is equal to 12 minus 1 into common difference d, 2,000. 2 1 जा, 2 6 जा. So we get 6 in bracket 5,000 into 2 is 10,000 plus 12 minus 1, 11 into 2,000. हमें मिला 6 in bracket 10,000 plus 11 2 जा 22,000. This can be written as 6 into 10,000 plus 22,000 is 32,000, which is equal to 30. 6 2 जा 12, remainder is 1. 6 3 जा 18 plus 1 19. Yes, 12 is 1,92,000, and so we can write the answer. Total saving is 1,92,000. Yes. See the last example. There is an auditorium with 27 rows of the seats. There are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, 24 seats in the third row, and so on. Find the number of seats in the 50th row and also find how many total seats are there in the auditorium. See, there are 20, 22, 24 and so on seats in first, second and third row as respectively. Okay, this is an AP. Why AP? Because common difference is constant. 22 minus 20, 2. 24 minus 22, 2 again. Number of seats in row are in AP with first term A is equal to 20 and common difference D is equal to 2. यहां तक तो हम आ गए. To find the number of seats in 50th row, T15 हमें निकालने के लिए कहा है. तो by using the formula Tn is equal to A plus n minus 1 into D, we get T15 is equal to 20 plus 15 minus 1 into 2, 20 plus 14 into 2, 28 plus 20 is 48. Therefore T15 is equal to 48. इसका मतलब ये हो गया 15 रो जो है उसमें हमें नंबर ऑफ चेयर्स मिलेंगे 48. आगे हमें पूछा है टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम, दैट इज यस 27, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रोज 27 है. सो हम यूज करेंगे फॉर्मूला Sn is equal to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. Okay, yes 27 is equal to 27 by 2 in bracket 2 into 20 plus 27 minus 1
इंटू डी की वैल्यू है 2। सॉल्व द एग्जाम्पल। 27/2, 40 प्लस 26 2 जा 52, 27/2 इंटू 92, 2 4 जा 2 6 जा 27 इंटू 46 हमें मिला यस 27 इज इक्वल टू 1242। इस तरीके से 48 seats are there in the 15 row and second question was how many total seats are there? So 1242 seats are there in the auditorium। इसके साथ चैप्टर नंबर 3 जो है, टॉपिक नंबर 3 जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यहां हम खत्म करते हैं। थैंक यू।